Dear student, today we are in our question number 101. If violet color is obtained with neutral FeCl3 solution, then the substance must be. You have to remember, many times this question is asked. फिनॉल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देगा बिकॉज ऑफ Fe+3 के साथ 3-फिनॉक्सी कंबाइन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स दे रहा है, सो इट विल बी कलरफुल. सो आंसर इज ए. नाउ 102. Salicylic acid can be prepared from phenol by. सैलिसिलिक एसिड क्या रहता है? COOH by Kolbe reaction we can derive. Now 103. Which of the following product is obtained when phenol react with bromine in presence of carbon disulfide at 273 Kelvin temperature? Whenever phenol is reacting with bromine but presence of carbon disulfide at 273 Kelvin, so it gives only para product. यहाँ पे bromine attach होगा, so para bromophenol is our answer. Now 104. Phenol when heated with chloroform in aqueous sodium hydroxide solution, so salicylaldehyde is formed. This reaction is known Riemann-Tiemann reaction. ये वाला Riemann-Tiemann हो जाएगा. In the 105, which product will be obtained by nitration of phenol with dilute HNO3? फिनॉल का नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3, OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डिटेक्टिंग रहता है, so NO2 enters in ortho position in para position, so orthonitrophenol and paranitrophenol, it gives product D. In the question number 106, with what is phenol heated to get benzene by removing OH group? In 106, फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाएगा विथ जिंक as a zinc oxide and gives benzene, zinc powder. In 107, which of the following acid does not process carboxylic acid? कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा? बेंजोइक एसिड इसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो बेंजीन देगा. इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है. पिक्रिक एसिड में OH into NO2 होता है, ये वाला पिक्रिक एसिड. कौन सा कंपाउंड COOH ग्रुप नहीं दे रहा? बेंजोइक एसिड में होगा, पिक्रिक एसिड में नहीं रहेगा, सैलिसिलिक एसिड में रहेगा. यहाँ पे COOH NOH यहाँ पे रहेगा. एसिटिक एसिड में COOH ग्रुप रहेगा, सो B इज आवर आंसर. नाउ 108. विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? सो हियर इज NO2 and OH. वी डिस्कस्ड NO2 and OH. दिस इज पिक्रिक एसिड. So B.
Now question number 109. In the question 109 you can see what product will be obtained by heating salicylic acid with soda lime. When salicylic acid heating with soda lime, so COOH react with NaOH, ये वाला सोडियम सैलिसिलेट देगा. देन फर्दर रिएक्शन के बाद NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सो यहाँ से Na2CO3 रिमूव होगा and it gives a phenol. So answer is C. In 110, phenol with chloroform and sodium hydroxide on heating gives a product. ये वाला सैलिसाइलेट दे रहा है, सो ये रीमर टीमान रिएक्शन होगा ए. इन 111, phenol with zinc powder, phenol with zinc powder benzene देगा. Then reaction with bromine as a catalyst FeBr3, it gives a bromobenzene. So answer is D. Now 112, phenol. Here 273 Kelvin. यहाँ पे पेरा ब्रोमोफिनॉल दे रहा है, so X will be obviously bromine with carbon disulfide होगा. So answer is A. Now in 113, the major product obtained on titration of phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide is salicylic acid, phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide. Then after carbon dioxide, so first of all sodium phenoxide मिलेगा. Then after reaction with CO2, ये वाला OCOO देगा. Then after it gives यहाँ पे OH COONA in the acidic medium, H plus Na plus रिमूव हो जाएगा. Then it gives salicylic acid. यस डी रहेगा. ये सैलिसाइलेट है, यहाँ पे CH हो जाएगा. 114, the question number 114, which of the following compound will be most readily attacked by an electrophile? इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन की ओर, या बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड रहेगा. ये वाला इलेक्ट्रोफाइल लाइक Cl प्लस NO2 प्लस लाइक दिस. इन द क्लोरोबेंजीन दैट इज क्लोरीन, सो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो डोनेटिंग नेचर लेस रहेगा. बेंजीन में 6 pi इलेक्ट्रॉन रहेगा. फिनॉल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो जाएगा. सो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा इन द फिनॉल. नाउ 115, in 115, when phenol is treated with excess bromine water, it gives phenol is reacting with
excess bromine water. So obviously ये वाला 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल देगा इन रिमूवल ऑफ 3 HBr रहेगा. In 116 phenol with chloroform on heating alkaline medium सैलिसाल्डिएट देगा. ये वाला रिमर्टिमान रिएक्शन हो जाएगा बी. In 117 each of the following statement is not correct. Phenol is neutralized by sodium carbonate. Wrong. Phenol is a weak acid, so it never react with a weak base. Strong base होगा ये नेवर तो उसके साथ रिएक्ट करेगा. ये वाला वीक बेस दोनों वीक हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा. In 118 what is true order of increasing boiling point from lowest to highest of the following compound? So here is 2-methyl propanetol. Then after ये वाला ईथर इथॉक्सी इथेन हो जाएगा. ब्यूटेन 1-ol is primary alcohol. Then butane 2-ol is a secondary alcohol रहेगा. So here is 2. ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस रहेगा. देन आफ्टर 1 अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. यहाँ 2 ब्रांचेस है. देन आफ्टर 4 यहाँ पे 1 ब्रांचेस, ये वाला लीनियर. देन 3. सो डी इज आवर आंसर. 119 which of the following is the highest boiling point and which has the lowest boiling point? Yes, ethane 1,2-diol. There are 2 OH group. Propane 1,2,3-triol. There are 3 OH groups. In ethanol there is only 1 OH group. In butane 1-ol there is only 1 OH group. So सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट प्रोपेन 1-2 ग्लिसरीन का रहेगा. OH नंबर ऑफ OH ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगा. सो 2 एज हाईएस्ट. एंड इथेनॉल का सबसे लेस रहेगा. एक ही OH, इसमें भी एक ही OH है, बट इसका मोलिकुलर मास लेस, इसका ज़्यादा रहेगा. दोनों प्राइमरी बट मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल लेस, so boiling point is less. Answer is here B. In 120 CH3CCH3, this is 2-methyl propane 2-ol, 20% phosphoric acid and 358 Kelvin temperature. So what happens here? यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर रिमूव हो जाएगा. then it gives 2-methyl propene. then further reaction hydroboration. So according to anti-Markovnikov rule we get यहाँ मोर हाइड्रोजन हैविंग कार्बन पे मोर नेगेटिव पार्ट अटैच होगा. सो 2-methyl propane 1-ol देगा. C is our answer. In 121
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोड्यूसेस फिन प्रोपेन टू ऑल? कौन सा रिएक्शन प्रोपेन टू ऑल देगा? इन द फर्स्ट केस एसिडिक हाइड्रेशन कहते हैं। मोर नेगेटिव पार्ट कंबाइंस विथ लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H, प्रोपेन टू ऑल होगा। सो ये तो देगा। बी में क्या रहेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट AH हो जाएगा, वो नहीं देगा। यहाँ पे OH यहाँ पे आएगा हाइड्रोबोरेशन में। एसिटाल्डिहाइड में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड होगा। सो ऑक्सीजन विथ MgBr, यहाँ पे CH3। देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस सो ये वाला प्रोपेन टू ऑल देगा, A एंड D। नाउ 122, which is the major product obtained by hydrolysis of compound formed by reaction between formaldehyde and ethyl magnesium bromide? ये वाला इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। हियर इज MgBr, हियर इज इथाइल। देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस सो MgOHBr, then it gives CH3CH2 propane 1-ol. Answer is B. (123) Which of the following alcohols can be obtained from methanol? Methanol or methanol and alkyl magnesium halide. HCHO is methanol. React with Grignard reagent. So you can see here HCOOH RMgX, O के साथ MgX and here is R. So MgX with OH. It gives alcohol. In the 123 answer is D. कौन सा अल्काइल ग्रुप लिए? इस वजह से यहाँ अल्काइल ग्रुप मिथेनॉल के साथ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे तो इथेनॉल देगा। ओनली फॉर्माल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, सो ये वाला मिथेनॉल देगा। ऑल द अल्कोहल्स वी कैन डिराइव, सो इन 123 आंसर इज डी। नाउ 124, which is the final product obtained by the reaction of Grignard reagent ethyl magnesium bromide with propanone? This one is propanone plus Grignard reagent. Ethyl magnesium bromide. Here pi bond break हो जाएगा इसके साथ MgBr and here is ethyl. So here हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? MgBr with OH रिमूव हो जाएगा and
यहाँ पे CH3COH इन द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन रहेगा। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, सेकेंड में OH, सो ये वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल देगा। दिस इज आवर आंसर। In the 125, you can see N is the assumed compound, react with MgBr and hydrolysis gives CH3 CHOH and CH3 propane 2 all there are. Now reaction with R gives propanone acetone. So here will be एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे कार्बन 2 और 1, सो 3 कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा। लाइक दिस CH3COOH विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे MgBr, यहाँ पे मिथाइल, MgBr रिमूव हो जाएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सो प्रोपेन 12 हो गया। देन आफ्टर आर कौन सा रहेगा, सो ये कीटोन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2 7H2SO4, सो 2 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये वाला एसीटोन देगा, सो आंसर इज बी। डी भी हो सकता है, PCC प्लस CH2Cl2 भी देगा। Now 126, from the following equation which one is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट आ रहा है? यू कैन सी हियर इन डाइबोरेशन, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है, सो OH ग्रुप मोर हाइड्रोजन हैविंग कार्बन पे आना चाहिए, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन पे आ गया, सो D is our answer, which is wrong. In 127, alcohol oxidation by Na2Cr2 7 and H2SO4, so it gives aldehyde। अल्कोहल में से aldehyde फॉर्म होगा, COOH हो जाएगा, CH3C, ये वाला अल्कोहल, यहाँ से तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, सो अल्डिहाइड होगा। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ होगा, सो इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो आंसर इज अल्डिहाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट अल्कोहल, द अल्कोहल शुड बी, इसका 2 कार्बन वाला अल्कोहल, सो ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल होगा, C। नाउ अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 128, alcohol concentrated HCl and then ZnCl to Lucas test, alcohol gives a chloroalkane, okay, suppose here is ethanol, so chloroethane देगा। This reaction involves the cleavage of which bond? Obviously यहाँ OH कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच में ब्रेक होगा, OH की जगह पे क्लोरीन आ रहा है, सो बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन।
In 129, 3 mole of ethanol react with PCl3. It gives 3 mole of chloroethane and phosphoric acid. So here X will be, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और नंबर कितना होगा, +3 रहेगा. इन द H3PO3 3OH का माइनस, so phosphorus will be +3. In 113, question number 113, X oxidized by sodium dichromate and sulfuric acid, ये वाला एसीटोन दे रहा है. देन फर्दर ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड दे रहा है. सो कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडेशन के बाद एसीटोन देगा? ऑब्वियसली प्रोपेन टू ऑल देगा. यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एज H2O. सो ये वाला एसीटोन देगा. एंड ऑक्सीडेशन ऑफ इट, यहाँ पे 1 कार्बन will be removed as a CO2, 2 हाइड्रोजन as H2O and 1 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा एसिटिक एसिड. सो मेन कंपाउंड शुड बी प्रोपेन टू ऑल रहेगा. 131, X plus PCl3 gives Y. Y react with sodium metal and ether gives normal butane. अपना Y कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली क्लोरोइथेन रहेगा, क्योंकि ब्यूटेन कब बनेगा? दिस इज वुड्स रिएक्शन. ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है मीन्स 2 molecule of chloroethane combining with sodium. So Y chloroethane रहेगा. यस. देन क्लोरोइथेन किस में से फॉर्म होगा? इथेनॉल में से. यहाँ पे OH रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा. सो आंसर इज सी. इन 132, C4H10O, actually CnH2n plus 2O. Whenever CnH2n plus 2O रहेगा, ये वाला अल्कोहल और ईथर देगा. अल्कोहल, यस, अल्कोहल इज गिवन. ऑक्सीडेशन के बाद 4 कार्बन वाला कीटोन दे रहा है. सो हियर 4 कार्बन वाला अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल होगा. यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. देन पाई बॉन्ड फॉर्म्स देयर, सो इट गिव्स ब्यूटेन टू 1. दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम. सो ये वाला अल्कोहल ब्यूटेन टू ऑल होगा. इसमें से ब्यूटेन टू 1 फॉर्म होगा. इन 133, C2H6O, सेम. CnH2n plus 2O मीन्स ये वाला अल्कोहल अदरवाइज फिनॉल हो सकता है. ऑन ऑक्सीडेशन C2H4O दे रहा है. CnH2nO होगा तो ये वाला कीटोन हो जाएगा. देन C2H4O2, सो CnH2nO2 होगा. ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा. दिस इज ट्रिक टू डिफाइन. सो हियर विल बी X will be primary alcohol रहेगा. So it will be ethanol. On oxidation it gives ethanol. Then after acidic acid
नंबर ऑफ कार्बन 2, 4 and 1. सो प्राइमरी एक्स इथेनॉल रहेगा ए. नाउ 134. During oxidation of alcohol by acidified potassium dichromate, the color of oxidizing agent changes from orange green. इसका कलर ऑरेंज होता है, वो ग्रीन हो जाएगा. वाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट इनटू क्रोमियम सल्फेट. So answer is A. In 135, propane to all is given it gives propanone. सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होगा मीन्स ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी Na2Cr2 7/H2SO4. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम विद इथेनॉल रहेगा. यहाँ पे H और यहाँ पे H आ जाएगा. यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला ऑक्सीडेशन हो जाएगा. इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो रिडक्शन. आंसर इज सी. नाउ इन 136 ब्यूटेन बेंजीन 1,4-diol means क्विनोल. इसका कॉमन नेम इज आस्कोक्विनोल. एंड कैटेकोल 2 OH एडजेक्टेंट कार्बन पे रहेगा कैटेकोल. इट मीन्स बेंजीन 1,2-diol. सो 137. In question number 137, possible isomer of monohydric phenol having molecular formula C7H8O फॉर्मूला होगा, तब इसका आइसोमर. सो हियर विल बी CH3OH. ऑर्थोक्रेसोल and paracresol. Two. In 138, aqueous solution of phenol is more acidic than alcohol because reason for that in the phenol when H plus remove हो जाएगा, so it gives phenoxide and there is a resonating structure आ रहा है. यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा. एंड ड्यू टू दैट इट विल बी हाईली स्टेबल, सो इट इज इजीली रिलीजिंग H plus ion. So answer is D. In 139 now, arrange the following phenolic compound in decreasing order. Yes, फिनॉल में कोई डोनर ग्रुप आएगा, सो वो क्या करेगा, उसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, इसका पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा. फिनॉल में कोई विड्रॉलर ग्रुप आएगा, सो ये वाला मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव बना देगा. फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आएगा, सो बेसिसिटी एसिडिटी डिक्रीज कर देगा, ये वाला मोर एसिडिक हो जाएगा.
So here in 139 answer is B 2. More acidic, इसके बाद the 3 and इसके बाद 1. Now question number 114. Which of the following can undergo electrolytic substitution easily? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटीट्यूशन क्या रहेगा? कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट रहना चाहिए, OH ग्रुप के साथ मिथाइल, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. बट हियर इज द नाइट्रो ग्रुप विच इज विड्रॉलर रहेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा. सो आंसर इज ए. बाकी सब में डोनर ग्रुप नहीं है, विड्रॉलर ग्रुप आ रहा है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा. ये वाला मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा. सो आंसर इज ए. नाउ बाय, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.